I just need half a minute. Hanji bete. So let us come to second point, expenditure on health. Now, expenditure on health का meaning है कि firstly, before coming to the word expenditure, firstly we should know the meaning of health. What do we understand by health? In general, in a normal situation, in the words of a normal human being, ordinary person, normally we say when we are in a state of good physical being. Good physical being matlab we don't have any physical ailment, we don't have any disease, our body is perfectly working, तो हम कह देते हैं कि we are healthy person, and that state of being healthy is known as health. ठीक है, but in proper terms, in extensive terms, comprehensive terms, health not only includes physical health, but it also includes mental health of a person as well as his social well-being in the society. Three aspects are there for being a person healthy. क्या होते हैं? First is physical health. He or she should be physically healthy. Body ठीक होना चाहिए without any disease. And second is mental health. Means psychologically also we should be perfectly fit and fine. Sometimes what do we see? Bodily wise, yeah, physically we are quite fine, no problem is there, but there is a lot of mental stress, or psychologically we always feel burdened due to one or the other reason in our life. कोई ना कोई बात चलती रहती है, तो we always feel very stressed. There is always a kind of certain kind of means tension in our mind, है ना? तो we are, then in that case what happens, we don't want to do any work. सब कुछ वैसे ठीक है हम लोग, बट दिमाग के ऊपर सम बर्डन इज देयर, तो उसके करके वी डोंट वांट टू डू एनी वर्क. थोड़ा सारा दिन ऐसे ही मतलब अपसेट से ही निकल जाता है. तो व्हाट डज दैट मीन कि मेंटली वी आर अपसेट, वी आर नॉट फीलिंग हेल्दी एट दैट टाइम. It does not remain always, but in everybody's life it happens at one or the other time. जैसे during exam days, तो पहले सारा साल ना पढ़े हो तो टेंशन होती है, अब वो एकदम से स्ट्रेस आ जाता है, या कोई और किसी भी रीजन के करके हो सकता है. तो दैट मीन्स कि मेंटल फिटनेस इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट. अगर हम मेंटली हेल्दी नहीं है तो देन वी कैन नॉट बी एबल टू डू अवर वर्क प्रॉपरली. अभी आप नाउ यू आर अटेंडिंग द क्लास, है ना? तो मान लो अभी क्लास के पहले आपका कुछ घर पे कोई प्रॉब्लम हुई है, तो आप नो डाउट फिजिकली तो यू आर सिटिंग हियर, बट इमोशनली मेंटली आपका ध्यान कहीं और ही होगा. इसका मतलब यू आर नॉट एबल टू अटेंड द वर्क प्रॉपरली. ठीक है ना? तो सेम थिंग कैन हैपन विद एवरीवन इन दिस वर्ल्ड. ऑल आर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स. तो इसका मतलब हो गया टू बी हेल्दी वन शुड हैव physical fitness, physical good state of health should be there. Along with that, mental health should be fine. And thirdly, social well-being. Social well-being का मतलब होता है place of a person, respect of a person, his adjustment, the adjustment of a person in the society. आसपास हम लोग अच्छे से रहते हैं, इन अवर लोकेलिटी, इन अवर सिटी, इन अवर टाउन, इन अवर कंट्री, स्टेट, हम लोग एक बढ़िया तरीके से अपनी सोसाइटी में वी आर हैविंग ए रिप्यूटेड प्लेस. अगर वो भी ना हो, जिसको आपको याद है 10th में आपने लेसन किया था, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, रेपुटेशन इन सोसाइटी, ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो मैटर ए लॉट. हमारे पास वी कैन हैव लॉट ऑफ इनकम, वी कैन हैव ऑल फैसिलिटीज ऑफ लाइफ, बट इन अवर सोसाइटी इफ वी डोंट हैव रिस्पेक्ट, वी डोंट फाइंड दैट डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, तो भी हमें कोई बहुत बढ़िया नहीं लगता है. ठीक है ना? तो दैट मीन्स ऑल द थ्री सिचुएशन शुड बी देयर इन ए गुड कंडीशन. फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, एंड अवर what can we say, social well-being, society में place of our we people in the society. All these things if they are in good condition, then we say that a person is healthy. ठीक है जी? अब उसके बाद है कि how is it concerned with the economics, subject of economics. So इसका meaning है कि if we are healthy, only then we can be productive, only then we can be useful. किसके लिए? For whom? For our employer. अगर हम ठीक ठाक हैं तो wherever we are working, whether we are an employee or we are involved in some our own business, even then we can do our work properly if we are in a good state of health. ठीक है ना? Otherwise so we can't, we won't be able to do any work nicely. So in order to be productive, in order to be fruitful and useful for our employer, we are bound to be healthy. Only then there is our utility. Now imagine a situation if you people or me या कोई भी, if we are ever sick people,
हर दूसरे चौथे दिन हम छुट्टी लेने बैठ जाते हैं कि आज मैं ठीक नहीं हूँ, टुडे आई एम फीलिंग वेरी सिक, वेरी इल, आज ये हो रहा है, हेडेक हो रहा है, वो हो रहा है। तो मतलब हर हम हफ्ते में 4 दिन छुट्टियाँ ही लेते रहें तो व्हाट विल अवर एम्प्लॉयर से? ही विल से भी ठीक है भाई, यू सिट एट होम, गेट मेडिसिन, व्हेन यू बी इन ए गुड स्टेट ऑफ हेल्थ ओनली देन यू कम एंड ज्वाइन। हर रोज तो छुट्टी नहीं मिलती है ना। तो इसका मतलब देन व्हाट इज अवर इम्पोर्टेंस फॉर अवर कंपनी और अवर फर्म जिसके लिए वी आर डूइंग द वर्क? तो नोबडी लाइक्स दैट पर्सन हु ऑलवेज रिमेन्स सिक एंड इल। हिज एम्प्लॉयर्स ऑल्सो आस्क हिम टू बी एट होम, कि ऐसे आदमी का कोई फायदा नहीं जो कुछ कर ही नहीं रहा है, रादर बर्डन ही बन के बैठा रहता है। तो दैट पर्सन डज नॉट गेट रेपुटेशन और रिस्पेक्ट इवन एट हिज वर्क प्लेस इवन, एंड ही डज नॉट गेट प्रॉपर वर्क इवन। जब कोई कर ही नहीं सकता है तो उसको काम भी नहीं मिलता है। सेकेंडली, जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो देन इट अफेक्ट्स अस इकोनॉमिकली। तो अगर ऑब्वियसली हमारी सैलरी डिडक्ट होती है, हमारे पैसों का नुकसान होता है, तो दैट इज ऑल्सो ए बिग प्रॉब्लम। सो इट इज कंपल्सरी इन ए वे इन द मॉडर्न टाइम, आई एम यूजिंग द वर्ड कंपल्सरी, टू बी in a good condition and to be always useful and fruitful for the employer even, तो ही हमें कोई काम पे रखता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम हेल्दी नहीं हैं तो देन वी हैव टू फेस 2 टाइप्स ऑफ कंसिक्वेंसेज। अब वो कौन से कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं? वन, तो वी टेक लीव्स फ्रॉम अवर वर्क प्लेस, लेते ही रहते हैं जब ठीक ही नहीं है तो। एक तो ये है। तो देन व्हाट हैपन्स, अवर इनकम गेट्स अफेक्टेड। छुट्टियां लेंगे तो सैलरी डिडक्ट होती है, फ्री में हमें सैलरी नहीं मिलती है। ठीक है, कोई भी काम हो तो अवर इनकम गेट्स अफेक्टेड। सेकेंडली, वी हैव टू स्पेंड मनी ऑन द मेडिसिन ऑल्सो। अब वो भी अपनी पॉकेट से पैसे खर्च करेंगे, सैलरी मिलती नहीं है, तो देन टू वे, जिसको बोलते हैं ना डबल एज्ड स्वॉर्ड, दोनों तरफ से नुकसान होना। तो दोनों तरह से ऐसे नुकसान होता है इफ़ वी डू नॉट मेंटेन अवर गुड स्टेट ऑफ हेल्थ। अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं तो देन व्हाट शुड बी डन? क्वेश्चन अराइजेस, फिर क्या करें टू बी ऑलवेज हेल्दी? तो देन इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी पर्सन, हिज और हर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी हेल्दी। आपकी और मेरी अपनी जिम्मेदारी है। नोबडी एल्स विल कम फ्रॉम अवर नेबर्स हाउस टू एडवाइस अस कि भी आप जी खाना खा लो, आप ये कर लो, वो कर लो, कोई नहीं आता है। वी अवर सेल्स वी हैव टू टेक केयर कि हम ठीक ठाक रहें, सो दैट वी कैन डू अवर वर्क प्रॉपरली। ठीक है, तो देन व्हाट शुड बी डन? तो इन दैट केस, टू टेक केयर ऑफ अवर हेल्थ, वी शुड पे अटेंशन टू अवर गुड फूड, गुड लाइफस्टाइल, गुड लिविंग हैबिट्स। अच्छा खाना पीना खाएं, न्यूट्रिशियस बैलेंस्ड डाइट खाएं। क्या खाना है क्या नहीं खाना है, दैट ऑल्सो वी हैव टू डिसाइड। जंक फूड को छोड़ के हेल्दी न्यूट्रिशियस खाने को ध्यान दें तो हम हेल्दी रह सकते हैं। एक्सरसाइज करें, फिजिकली भी थोड़ा हिलजुल करें, है ना। ये नहीं कि सारा दिन खा पी लिया और बैठे रहे सारा दिन बेड पे, सोफे पे, वो नहीं। मतलब फिजिकल फिटनेस का वी अवर सेल्स हैव टू कीप केयर, टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। देन as a whole for the society, what can be done? 3-4 types of methods are there which can be done. अब वो कौन से हो सकते हैं? as you can see in your book, एक होता है प्रिवेंटिव मेडिसिन, मतलब what type of expenditures we can do। तो एक होता है प्रिवेंटिव मेडिसिन। प्रिवेंटिव मेडिसिन का मतलब होता है जैसे वैक्सीनेशन। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो छोटे बच्चे होते हैं ना, 7-8 ईयर्स तक उनको इंजेक्शंस लगवाते हैं। कोई ना कोई एक कार्ड बना होता है, हेल्थ कार्ड बना होता है, तो वो ये इस डिसीज़ का इंजेक्शन है जी, ये इसका पोलियो का है, ये उस स्मॉल पॉक्स का है, ये चिकन पॉक्स का है, ऐसे कई सारे होते हैं ना। तो ऐसे ही वैक्सीनेशन का मतलब है प्रिवेंटिव, कि बिफोर द अराइवल ऑफ डिसीज़, इन ऑर्डर टू चेक दैट डिसीज़ बिफोर हैंड वी गेट वैक्सीनेटेड, पहले ही इंजेक्शन लगवा लेना। दैट मीन्स वी आर ट्राइंग टू प्रिवेंट। यू वुड हैव हर्ड वन इडियम ऑल्सो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। बीमारी से इलाज अच्छा होता है, तो पहले ही ध्यान रखना अपनी हेल्थ का। कि कोई जैसे जैसे अभी कोरोना वैक्सीन इज बीइंग डेवलप्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज, तो जब ये आ जाएगी, अब तो चलो ये डिसीज हो गई है, बट आगे के टाइम के लिए पहले ही इंजेक्शन ले लेना ताकि ऐसी डिसीज दोबारा ना हो या प्रॉब्लम ना आए। तो वो क्यूरेटिव मेयर, क्यूरेटिव मतलब पहले से, सॉरी, प्रिवेंटिव मेयर मीन्स पहले से ही ध्यान रखना। एक तो ये हो सकता है। सेकेंड होता है क्यूरेटिव मेयर। क्यूरेटिव मेयर का मतलब होता है कि व्हेन वी कम इन द ग्रिप ऑफ ए प्रॉब्लम, अब हो ही गई है, कोई डिसीज हो ही गई है, तब हम जो मेडिकेशन करवाते हैं, जो भी इलाज करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्यूरेटिव। आप या मैं बीमार हो गए, देन वी गो टू डॉक्टर, गेट मेडिसिन, तो वो जो मेडिसिन होगी वो क्या कहलाएगी? दैट विल बी नोन एज क्यूरेटिव, कि हम अपना इलाज करवा रहे हैं। ठीक है, क्यूरेटिव। एक होता है प्रिवेंटिव, पहले से, बीमारी होने से पहले इलाज की कोशिश करना, दैट इज प्रिवेंटिव। जब डिसीज हो ही गई है, फीवर हो ही गया है, देन वी गो टू डॉक्टर एंड टेक मेडिसिन, तो इलाज के दौरान वट एवर मेडिसिन वी टेक, दैट इज कॉल्ड क्यूरेटिव।
थर्ड हो सकता है सोशल मेडिसिन। सोशल मेडिसिन, अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई घर घर आके कोई मेडिसिन हमें डिस्ट्रीब्यूट करता है, नो, इट ओनली मीन्स कि दैट इन द सोसाइटी पीपल नीड टू बी, what can we say, they need to be informants, they need to be knowledgeable people, they should have a kind of health literacy। जैसे होता है ना हेल्थ लिटरेसी, मतलब जानकारी हो, हम सब इतने अवेयर हों कि हाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है ड्यू टू दिस रीज़न, ड्यू टू कंटेमिनेटेड वाटर, ये डिसीजेज हो सकती हैं ड्यूरिंग स्पेशली रेनी डेज, या ड्यू टू दिस और दैट रीज़न पोल्यूशन के करके ये प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब हमें पता हो। सोसाइटी में ऑल द पीपल शुड हैव एटलीस्ट दिस काइंड ऑफ बेसिक नॉलेज कि भाई ड्यू टू दिस रीज़न दिस पर्टिकुलर डिसीज कैन हैपन। तो उसका थोड़ा सा मेंटली पीपल शुड बी रेडी, लोगों में अवेयरनेस हो, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, सोशल अवेयरनेस शुड बी देयर रिलेटेड टू हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो दैट इज सोशल मेडिसिन। ये कोई दवाई नहीं है, सिर्फ एक अवेयरनेस कम लिटरेसी रिलेटेड टू हेल्थ प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट होता है कि हमें और क्या दो रीजंस हो सकते हैं, एक होता है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एक और होता है सैनिटेशन। ये दो चीज़ें भी इक्वली इंपॉर्टेंट है टू बी हेल्दी। आसपास गंदगी ना हो, नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट हो अपने आसपास सारा, ताकि कंटेमिनेशन ना हो किसी भी तरह की, और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द डिसीजेज दे अकर ड्यू टू कंटेमिनेटेड वाटर, इम्प्योर वाटर। तो उस चीज़ को भी रोकने के लिए दिस टाइप ऑफ अवेयरनेस शुड बी देयर। आपने कभी ध्यान किया हो, हम सब लगवाते हैं, आरओज लगवाते हैं, प्योरीफिकेटर्स लगवाते हैं, वो क्या है, साफ पानी पीने के लिए, है ना, क्लीनलीनेस का ध्यान रखते हैं, क्या है वो, उसकी आसपास सैनिटेशन होगी तो हम हेल्दी रहने में, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। मीन्स दीज आर जस्ट वेज टू टेल कि भाई इस टाइप से सोसाइटी में वी पीपल कैन एज ए होल, एज ए सोसाइटी वी कैन पे अटेंशन टू दिस प्रॉब्लम। But on the individual level, why do we need to be healthy? Because it affects our income level. Because if we are not healthy, then we won't be able to attend our work properly, and it will be on the negative side on our part, because it may affect our employment also. We may be asked to sit at home, so then it is a problem money wise, income wise, ठीक है जी। So that is why we spend money on our proper food, we spend money on our medical facilities, so that we should always remain in a state of good health. I hope it is clear to everyone, ठीक है जी। Now next is, तो अब ये सारे कुछ का मतलब क्या हो गया कि अगर हम हेल्दी रहेंगे तो ऑब्वियसली वी आर ए गुड पर्सन, नॉट ओनली फॉर द सोसाइटी बट फॉर आवर फैमिली एज वेल एज फॉर द कंट्री ऑल्सो। एक अच्छे से काम कर सकते हैं, बस ओवरऑल इज दिस। नेक्स्ट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, स्पेशली इन द प्रेजेंट सिनेरियो। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है कि वेन एवर वी पीपल गेट जॉब, देन वी गेट इंडल्ज इन दैट, मेनी ईयर्स पास, कितने कितने सालों से हम लोग अपना सेट हो जाते हैं, काम पे लग जाते हैं, ठीक है। तो देन इन द मीन टाइम व्हाट हैपेंस इन द सोसाइटी, लॉट ऑफ टेक्निकल एडवांसमेंट टेक्स प्लेस, है ना, day to day on day to day basis, lot of new improvements come in the technology, in the area of technique, technology, सब कुछ होता जाता है। न्यू टाइप्स ऑफ मशीनरीज दे कम इनटू एग्जिस्टेंस। आप देखते हो हर 2-4 महीने के बाद न्यू मॉडल ऑफ दिस मोबाइल फ़ोन वही आ जाता है, कुछ ना कुछ नया चलता रहता है। एलईडी है, नया स्टाइल का कुछ आ गया, कोई कार है, स्कूटर है, कुछ भी व्हीकल है, कोई ना कोई नया डिज़ाइन आता रहता है। तो व्हाट डज दिस मीन कि टेक्नोलॉजी इज़ गेटिंग इम्प्रूव्ड डे बाय डे, उसके ऊपर बहुत रिसर्च होता है तो इट गेट्स इम्प्रूव्ड, ठीक। नाउ प्रॉब्लम अराइजेज कि टेक्नोलॉजी तो, जस्ट ए मिनट बेटे, yes बेटे। So technology gets improved day by day, but we human beings, those who are in job, we people pay less attention to our knowledge towards technical side. इतना जल्दी हम लोग improve नहीं कर पाते हैं। तो then what happens, there is a effect on the productivity of the people who are working. अब इस सारी कहानी का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, वो किसी भी फैक्ट्री में मान लो काम करता है। अब उसको मान लो 1960s का टाइम है या 70s का टाइम है, तो एट दैट टाइम उसको कोई फैक्ट्री के काम के लिए मार्केट में जाना पड़ता है, तो वो साइकिल उसको प्रोवाइड किया जाता है कि भाई ठीक है आप साइकिल पे जाओ, यू गो टू मार्केट ऑन साइकिल और ये सामान लेके आओ। तो अब वो पर्सन को साइकिल ही चलाना आता है। अच्छा, अब थोड़ा टाइम बीत गया तो कंपनी के जो ओनर्स हैं वो कहते हैं नाउ साइकिल के ऊपर इफ़ यू गो तो देन इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, टाइम ज़्यादा लगता है, तो आपको एक स्कूटर ले देते हैं
ऑफिस का ही, कंपनी का ही, तो यू मेक यूज़ ऑफ स्कूटर, पेट्रोल भी कंपनी डलवा के देती है, बट आप अपना काम जल्दी करके आओ और टाइम बचाओ, है ना। अब वो आदमी की सिचुएशन क्या है, अगर तो वो स्कूटर चलाना सीख लेता है तब तो वेल एंड फाइन। अब अगर वो पर्सन कहे कि नहीं मैं स्कूटर चलाना तो मुझे आता नहीं, व्हाट शुड आई डू, मैं तो साइकिल पे ही जा सकता हूँ, तो कंपनी क्या करेगी, थोड़ा तो टाइम उसको देगी, कोई बात नहीं आप सीखो। फिर भी अगर वो पर्सन हेजिटेट करता है टू लर्न हाउ टू ड्राइव ए स्कूटर, तो क्या होगा, उस पर्सन को काम से हटाया जाएगा। कंपनी वाले कहेंगे ठीक है तुम नहीं कर सकते तो हम किसी और पर्सन को लगाते हैं जिसको स्कूटर चलाना आता है। तो वो पर्सन, क्योंकि ही इज़ अनएबल टू इम्प्रूव हिमसेल्फ, ही इज़ अनएबल टू लर्न द न्यू टेक्नोलॉजी, तो एट वन और द अदर पॉइंट हो सकता है उसको किसी और जगह एडजस्ट करें, बट अगर ना ही हो, देयर इज़ नो ऑप्शन ऑफ हिज एडजस्टमेंट, तो उसको काम से निकाला जाएगा, है ना, बिकॉज इट इज़ कंज्यूमिंग मोर टाइम ऑफ द फैक्ट्री। तो लोग नहीं चाहते हैं, एवरी ओनर वांट्स कि कम टाइम में लोग ज़्यादा काम करें, तो उस पर्सन की नौकरी के ऊपर कोई रिस्क आ सकता है, खतरा हो सकता है। अच्छा, अब कोई कहे कि स्कूटर की बजाय आप कार पे जाओ, कार में ये सामान भी रख के लेके आओ, जल्दी जाओ और जल्दी आओ। अब कोई पर्सन कार सीखे ही ना, तो अगेन उसके लिए प्रॉब्लम है। मतलब आई जस्ट मीन टू से कि भाई इट इज़ दीज डेज इट बिकम्स कंपल्सरी फॉर द एम्प्लॉयज़ टू लर्न द न्यू टेक्निक्स, उसके बिना काम चलता नहीं है ना। जैसे जैसे अभी प्रेजेंट का आप एग्जांपल लो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 19th ऑफ मार्च से ये स्कूल में हमारा ये ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, कोविड प्रॉब्लम, 19th मार्च से छुट्टियां स्टार्ट हो गई थी, वी ऑल पीपल केम, है ना। अच्छा, अब उसके बाद क्या हो गया, विद इन ए डे और टू वी ऑल पीपल स्टार्टेड अवर वर्क थ्रू व्हाट्सएप, स्कूल के सारा काम उसके ऊपर हुआ। उसके बाद देन डे बाय डे वी ऑल वर asked, as well as it was the need of the time, it was the necessity of the time कि और थोड़ा सा और फ़ोन के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर हम नई नई चीज़ें सीखें। अर्लियर नो डाउट नाउ दीज थिंग्स वर देयर विद ऑल द टीचर्स, फ़ोन भी सबके पास ही थे, लैपटॉप भी सभी के पास थे, बट इतने फंक्शंस हम लोगों को नहीं आते थे, है ना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सभी के साथ है, आप बच्चों को ज़्यादा आते होंगे, हमें शायद कम आते थे, हमें नहीं पता था। सो अब क्या हुआ, नाउ नीड हैज़ कम, now we have been told to learn all these things, ठीक। now we are already in the job, हम काम कर ही रहे हैं, but while being in the job we are learning all these things, ठीक है। पहले हम सीखते हैं, उसके बाद आपके साथ वो आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे ये जूम ऐप ही है, तो पहले 4-5 दिन हमने खुद सीखा कैसे काम करना है इसके ऊपर, देन वी आर डूइंग दिस वर्क। सो दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इट इज कॉल्ड ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। क्योंकि न्यू needs are there, new technologies are there, new situations are there, so all the employees they have to change as per the situation। अब अगर कोई टीचर कहे कि नहीं मैं सीख ही नहीं सकता, तो फिर कैसे पढ़ाएगा, बहुत ही मुश्किल है, फिर तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, काम नहीं चलेगा फिर, है ना। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मीन्स व्हेन एम्प्लॉयज आर गिवन ट्रेनिंग while being in service, and this training is provided by the employer, by the institution, by the owner, जिसके लिए भी हम काम कर रहे हैं, वो कोशिश करता है कि लोगों को नई नई टेक्निक के बारे में सिखाया जाए। सिमिलरली इफ एनी पर्सन इज वर्किंग इन ए फैक्ट्री, कोई मशीन के ऊपर ऑपरेट करना है उसने, तो अगर फैक्ट्री ओनर ब्रिंग्स मेक सम इन्वेस्टमेंट एंड ब्रिंग्स न्यू मशीन, तो देन ही विल प्रोवाइड सम ट्रेनिंग कोर्स फॉर द पर्सन, जो वर्कर है उसको हफ्ते 10 दिन की ट्रेनिंग देगा कि सीखो इस मशीन के ऊपर कैसे काम करना है, क्योंकि वो मशीन पहले नहीं चलाई हुई है, तो हफ्ते 10 दिन, 1 मंथ, 6 मंथ, जैसी भी रिक्वायरमेंट हो उसके मुताबिक पहले ट्रेनिंग दिलवानी पड़ती है। तो जो ओनर होता है, एम्प्लॉयर होता है, ही मेक्स द अरेंजमेंट्स फॉर द लर्निंग, फॉर द दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग विच इज़ टू बी गिवन टू द एम्प्लॉयज़, ठीक है। अब ये जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, तो नाउ यू मे थिंक कि एम्प्लॉयर को क्या फ़ायदा, उसका क्या बेनिफिट है, लोगों को, वर्कर्स को सिखाए, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि व्हेन वर्कर्स लर्न न्यू टेक्निक, तो हु गेट्स द अल्टीमेट बेनिफिट, अल्टीमेट बेनिफिट गोज टू द ओनर। क्यों, क्योंकि वर्कर्स उसके लिए काम कर रहे हैं, वट एवर द वर्कर्स आर प्रोड्यूसिंग, तो उसको बेच के, उसको सेल करके अल्टीमेट प्रॉफिट तो एम्प्लॉयर के पास ही जाना है, मालिक के पास ही जाना है। वर्कर की नो डाउट उसकी अपनी नॉलेज इंप्रूव होती है ना, अपना तो ज्ञान बढ़ता ही है, बट उसके साथ ही साथ जो मनीटरी बेनिफिट है दैट गोज टू द एम्प्लॉयर। That is why all this type of training programs are organized. So sometimes this training can be given within the office premises,
अपने ऑफिस में ही दी जा सकती है. समटाइम्स वर्कर्स आर एम्प्लॉइज आर सेंट टू सम अदर प्लेस ऑल्सो, कहीं बाहर भी भेजना पड़ता है किसी दूसरे सिटी में या कंट्री में या स्टेट में, कि वहाँ से जाके आप 1 मंथ की ट्रेनिंग है या 2 मंथ की, जैसी भी सिचुएशन हो. तो समटाइम्स एम्प्लॉइज आर सेंट आउटसाइड ऑल्सो, एंड समटाइम्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द ऑफिस, expert people are invited and training programs are organized, training sessions are organized. जैसे हम लोगों ने ये सारा कुछ सीखा है, तो we are fortunate to have Sukhjeet ma'am along with us, computer teachers. All these computer teachers of our school, they spent a lot of time to train rest of the teachers, क्योंकि हम सबको तो इतना नहीं पता था ना अदर सब्जेक्ट टीचर्स को. तो ये सारे जितने भी कंप्यूटर टीचर्स हैं, दे हैव डिवोटेड ए लॉट ऑफ टाइम टू मेक अदर पीपल लर्न वेरियस न्यू थिंग्स. अभी भी वेन एवर वी फेस एनी प्रॉब्लम वी कॉल देम, उनसे पूछते हैं. तो दिस इज ए काइंड ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग. Why is it required? Because it is the need of the time. So any institution which does not work according to the new situations, then it becomes difficult for that institution to survive in the market. ठीक है. अब अगर स्कूल वाले ये ऐसा ना करें तो बाकी स्कूलों वाले करें, तो फिर हमारे स्कूल की क्या सिचुएशन होगी अगर हम ऐसे पढ़ाई ना पाएँ तो. मतलब दिस इज नॉट रिलेटेड टू स्कूल ओनली, कोई भी काम हो सकता है, कोई भी फैक्ट्री हो सकती है. तो इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द मार्केट, वन नीड्स टू डू ऑल, टू टेक ऑल दीज टाइप्स ऑफ स्टेप्स. तो इट इज कॉल्ड ऑन द जॉब ट्रेनिंग. ठीक है जी. अच्छा, उसके बाद अच्छा एक मुझे और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल याद आ गया, फिर मैं भूल ना जाऊँ. अभी आपने देखा थोड़े दिन पहले Indian Air Force has got Rafale jet planes. Rafales, they were purchased from France, है ना. तो वो जो जितने भी planes आए हैं, उनको उड़ाने वाले, उनको फ्लाई करने वाले जो पायलट्स हैं इंडियन एयर फोर्स की, they had gone to France. वहाँ पर जाके उन्होंने फ्रांस की एयर फोर्स के एक्सपर्ट पायलट से पहले ट्रेनिंग ली है कि इन जेट प्लेन्स को कैसे फ्लाई करना है, बिकॉज वो न्यू टेक्नोलॉजी से हैं. अब हम सीधा सीधा कहते हैं पायलट है वो तो कोई भी जहाज उड़ा ले, नो डाउट उड़ा सकता है, बट हर एक प्लेन की अपनी अपनी कुछ खास करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको ऑपरेट करना पड़ेगा. तो नाउ दीज पायलट्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स, दे हैव गॉन टू फ्रांस एंड दे हैव गॉट ट्रेनिंग ऑफ, अगर मेरा गलत अंदाज़ा नहीं है तो 5-6 महीने की दे हैव टेकन द ट्रेनिंग ऑल्सो. नाउ दे हैव ब्रॉट दीज प्लेन्स टू अवर ओन लैंड. तो इसका मतलब हो गया कि ट्रेनिंग इज़ वेरी मच इसेंशियल कोई भी नए काम को करने के लिए. इन ऑर्डर टू मेक यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग इज़ मस्ट. ठीक. तो इससे अल्टीमेट फ़ायदा एम्प्लॉयर को होता है. Now next is expenditure on migration. Next part is, next point, expenditure on migration. This is also very simple and interesting. Now why do we migrate? Why do we बाद में करते हैं? What is migration? Migration means movement of people from one place to another. Simple words में ये. और migration, it is not a कोई new phenomena. Centuries old, times immemorial, people have kept on moving from one place to another. अगर याद हो आपको अर्ली मैन के टाइम से, तो कहाँ पर माइग्रेट करते थे? इन सर्च ऑफ फूड, थोड़ा सा और सिविलाइज्ड हो, इन सर्च ऑफ शेल्टर. तो ये माइग्रेशन, इट इज़ ए फॉर एवर फिनोमिना, फॉर एवर प्रैक्टिस, शुरू से ही चलती आ रही है. बट नाउ इन प्रेजेंट टाइम, व्हाई इज देयर माइग्रेशन? इट इज़ फॉर development, it is for economic growth of a person. Everybody wants to earn more income. So if at his given place he is not getting a good salary, so then what does he think? He wants to go to some other place जहाँ पे उसको बढ़िया जॉब मिले, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले और वो बेटर इनकम अर्न कर सके. ठीक है. So that is why he migrates. So अभी ये जो migration है, normally it happens from rural to urban areas and from less developed countries to more developed countries. यही होता है ना process, rural to urban areas, क्योंकि rural areas में more opportunities are not there, so that is why people tend to come to cities for better option. Similarly, in less developed countries, there are less opportunities, so then people tend to go to बेटर कंट्री. बेटर कंट्री मतलब डेवलपमेंट के एंगल से. जैसे इंडिया से लोग, दे वुड लाइक टू माइग्रेट टू अमेरिका, दे वुड लाइक टू माइग्रेट टू अदर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज. दे विल नॉट लाइक टू माइग्रेट टू श्रीलंका, दे विल नॉट लाइक टू माइग्रेट टू बांग्लादेश. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. अपने से बड़े देश में, अपने से ज़्यादा डेवलप्ड जगह पे हम सारे जाने की एफर्ट करते हैं. ठीक है जी. तो दैट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन. नाउ व्हेन दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन इज डन, then two types of costs are also to be incurred. Cost का मतलब पहले one has to spend money from his own pocket, खर्च करना पड़ता है. अब वो क्या होता है? एक होता है cost of transportation from one place to another.
मान लो विद इन कंट्री है, ट्रेन से जाएगा, कोई बस से जाएगा, तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे, किराया खर्च करके ही कोई जाएगा। इंडिया से अमेरिका जाता है तो टिकट का फेयर, एयर टिकट का लाखों रुपयों में जाता है, वो पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो पहले वो किसी ने दिए नहीं, वी हैव टू स्पेंड फ्रॉम अवर ओन पॉकेट, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। वेदर वी गो बाय बस, वी गो बाय ट्रेन, वी गो बाय एयर, किसी भी तरह से जाएं, वी हैव टू स्पेंड मनी ऑन अवर फेयर, ऑन अवर टिकट, तो देन दैट इज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज टू बी इनकर्ड बिफोर हैंड। अभी हम कहीं जाके काम नहीं स्टार्ट किया, पहले अपने पॉकेट से वी हैव टू स्पेंड। सेकेंडली, व्हेन वी गो टू न्यू प्लेस, वहाँ पे जाते हैं, वी सर्च न्यू वर्क, थोड़े दिन, 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन देखना पड़ता है कहाँ काम करें, ढूंढना पड़ता है। व्हेन वी गेट सेटल्ड देयर, तो उसके बाद क्या होता है, देन वी हैव टू लिव इन दैट वेरी कंट्री। अब नाउ इन दैट कंट्री अगेन वी हैव टू स्पेंड मनी ऑन अवर डे टू डे लाइफ, अपने खाने पीने के ऊपर, अपने रहने के ऊपर, रेंट देना पड़ता है, अपने लिए कोई व्हीकल का अरेंजमेंट करना पड़ता है, अपनी, जैसे हम घर पे रहते ही हैं तो घर का खर्चा होता है ना, रहने का तो खर्च होता ही है। तो सेम वे व्हेन एनी पर्सन गोज टू सम अदर प्लेस, तो देन ही हैज टू स्पेंड मनी ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑल्सो, रहने सहने का खर्चा, घर का सारा, किचन का खर्चा, ग्रोसरी का खर्चा, फ्यूल का, पेट्रोल का, जो भी घर के खर्चे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, बच्चे हैं साथ में तो उनकी एजुकेशन, सब खर्च होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि व्हेन ही गोज टू न्यू प्लेस, तो वहाँ पे कंपैरेटिवली ही हैज टू स्पेंड मोर मनी ऑन दिस कॉस्ट ऑफ लिविंग। कहने का मतलब है, एक ऑन एन एवरेज इंडिया में रह के किसी का जितना घर का खर्चा आता है, अगर वो पर्सन अमेरिका माइग्रेट करता है तो वहाँ पर जाके उसके खर्चे भी बढ़ेंगे। ये नहीं कि वहाँ जाके वो खर्च इंडिया के हिसाब से ही करे और वो रहे अमेरिका में, वहाँ भी वहाँ के हिसाब से उसको, वहाँ के मार्केट के हिसाब से उसके सारे खर्च होंगे। तो कंपैरेटिवली उसका जो रहन सहन का खर्च है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, दैट ऑल्सो इंक्रीजेज, ही हैज़ टू स्पेंड मोर मनी ऑन दैट कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक। अब क्वेश्चन अराइजेज कि फिर उसको फ़ायदा क्या हुआ, अगर सारे खर्चे ही ज़्यादा हो रहे हैं, टिकट पे भी इतने लाखों रुपए खर्च किए, वहाँ जाके भी हो रहे हैं, तो दैट व्हाट इज़ द बेनिफिट। बेनिफिट ये है कि आफ्टर स्पेंडिंग फ्यू ईयर्स, कुछ साल काम करने के बाद, पहले वो अपने पहले वाले पैसे का बैलेंस करता है कि मेरा कितना टिकट का खर्च हुआ था, मेरा कितना रूटीन पे खर्च हो रहा है, वन जस्ट ट्राइज टू बैलेंस। बट आफ्टर सम ईयर्स व्हाट हैपन्स, नाउ द इनकम ऑफ दैट पर्सन इंक्रीजेज। वाई? बिकॉज वो पर्सन गेट्स सेटल्ड देयर, एक एडजस्टमेंट सी हो जाती है लाइफ की, तो सारी नीड्स भी पूरी होनी स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद वट एवर ही अर्न्स, दैट बिकम्स हिज प्रॉफिट। खर्चे पूरे होने के बाद फिर बाकी का जो भी बचता है, इनकम, उसकी सेविंग जो भी बचती है, दैट इज ए काइंड ऑफ प्रॉफिट विच ही गेट्स, जो शायद इंडिया में रह के वो ना कर पाता, या विलेज में रह के वो पर्सन ना कर पाता, इतनी ज़्यादा इनकम ना अर्न कर पाता। अब नई जगह पे जाके उसको बेटर ऑप्शंस मिले हैं, बेटर सैलरी, पहले से ज़्यादा सैलरी मिल रही है, तो वो अपने सारे खर्च करने के बाद भी नाउ ही इज़ इन ए पोजीशन टू सेव मोर मनी। तो वो जो उसकी सेविंग बढ़ रही है, वाई हैज़ इट हैपन्ड? बिकॉज ऑफ हिज डिसीजन ऑफ माइग्रेटिंग फ्रॉम rural to urban area or from less developed area to more developed area, ठीक है। दैट कैन बी एनी स्टेट, दैट कैन बी एनी कंट्री, सिटी, कोई भी हो सकता है। तो ये माइग्रेशन का, तो व्हेन पीपल माइग्रेट इन दिस मैनर, तो दे आर ऑल्सो ए काइंड ऑफ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आपने नोटिस किया हो, न्यूज़ वगैरह सुनते हो, अमेरिका में वहाँ की जो स्पेस एजेंसी है, नॉर्थ अमेरिकन स्पेस एसोसिएशन, नासा जिसको बोलते हैं, फुल फॉर्म मेरी गलत भी हो सकती है, नासा नाम आपने सुना हुआ, स्पेस रिसर्च जो उनका, जैसे अपना इसरो है, तो नासा में तकरीबन 40% ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ दे आर इंडियन साइंटिस्ट्स। आप सोच के देखो, 100 में से 40% इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, इंडियन जो माइग्रेशन करके गए हैं वो लोग हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो माइग्रेशन करके ना जाते, तो इतनी ज़्यादा उनके पास साइंटिफिक एबिलिटीज़ थी, साइंटिफिक उनको नॉलेज है, तो वो शायद अपने यहाँ उनको इतनी अपॉर्चुनिटी ना मिलती, क्योंकि कम डेवलपमेंट है यहाँ पे, है ना, इतना ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं। अभी तो हो रहा है, बट पहले के टाइम में, आज से 10-15 साल पहले, तो ऐसे ही जब वहाँ पे चले गए, नाउ दे गॉट बेटर अपॉर्चुनिटीज़ इन देयर लाइफ, नाउ दे हैव शोन देयर फुल स्किल्स, वहाँ जाके वो सेटल हुए हैं, उस वहाँ की उस कंट्री के लिए वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब चाहे कंट्रीब्यूट किसी के लिए भी कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर कंट्रीब्यूटिंग देयर ह्यूमन स्किल्स। एक आदमी के अंदर जो भी काबिलियत होती है वो तो अपनी दिखा ही रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि उनके जो नॉलेज है, दैट हैज़ गॉट ए बेटर एक्सपोजर इन दैट कंट्री। वाई? बिकॉज देयर वर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स हैं। अब वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्म किसके लिए हुई है? फॉर अमेरिका।
क्योंकि यहाँ तो इंडिया में तो नहीं रह रहे हैं, वो अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो नाउ दैट ह्यूमन कैपिटल हैज़ गॉट फॉर्म्ड फॉर अमेरिका, उनके लिए वो काम कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट वन इज, दिस इज क्वाइट सिंपल, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। इसका मीनिंग होता है कि most of us, we people, we spend a lot of money on getting information. जैसे आप और मैं, हम सारे मोबाइल के ऊपर खर्च करते हैं, रिचार्ज करवाते हैं, हर मंथ पैसे खर्च करते हैं, नेट पैक डलवाते हैं, या कोई कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर नई नई बातें सीखते हैं, न्यूज़पेपर खरीदते हैं, कोई मैगजीन्स खरीदते हैं, किसी और इन्फॉर्मेशन के लिए कोई सब्सक्रिप्शन देते हैं। तो ये सारे खर्च हम क्यों करते हैं? बिकॉज वी ऑलवेज वॉन्ट टू रिमेन अप टू डेट, अपनी नॉलेज को अप टू डेट रखना चाहते हैं। नाउ नॉलेज रिगार्डिंग व्हाट, जैसे आप स्टूडेंट्स हो, तो अभी आप मान लो आप पता कर रहे होंगे कि आगे कौन सा कॉलेज है, कहाँ पे क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, मैं ये वाला कोर्स करूँ तो मेरे आगे इसके क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, इसकी क्या मुझे जॉब मिल सकती है, किसके प्रॉस्पेक्ट्स ज़्यादा हैं, किसके कम हैं। मीन्स वी ट्राई टू गेट इन्फॉर्मेशन एंड वी हैव, और इन्फॉर्मेशन भी हमें फ्री में नहीं मिलती है, थोड़ा सा मनी अपने पास से में खर्च करना ही पड़ता है टू हैव दैट इन्फॉर्मेशन। तो हम कोई ना कोई अपने मॉडर्न मीन्स थ्रू फ़ोन, थ्रू इंटरनेट, ये सब काम करते हैं। सो न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। तो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन के ऊपर मनी है, मोस्टली हम लोग खर्च करते हैं टू गेट नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशनल फैसिलिटीज़, इंस्टीट्यूशंस, स्कूल, कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, या हम खर्च करते हैं कि हमें और कहाँ बेटर जॉब मिल सकती है, कहाँ पर बेटर ऑप्शन है। जो काम भी हमें आता है तो हम कुछ सर्च करते रहते हैं कि कहीं और अगर वैकेंसी हो, जैसे आप देखते हैं ना इंग्लिश में आप करते हो वैकेंसी राइटिंग कैसे होती है, कैसे आता है वो न्यूज़पेपर में, तो ये सारा क्या है, वैकेंसी देखते हैं कि कहाँ पे वी कैन गेट बेटर ऑप्शन, कहाँ पे वी कैन गेट बेटर सैलरी। तो फॉर दैट whatever knowledge we gain, whatever information we gain, and whatever money we spend on getting that information, that is called expenditure on information. तो ये भी हमें हेल्प करता है टू अवेल अ बेटर ऑप्शन इन अवर लाइफ। वो ऑप्शन चाहे एजुकेशन का हो, चाहे जॉब का हो, बिजनेस का हो। जैसे कोई बिजनेसमैन है, वो मोबाइल के ऊपर चेक करता रहे कि कोई ना कोई कहाँ पर कौन सी मार्केट है, कौन सा जगह है, एरिया है जहाँ पे अपना मैं सामान बेच सकता हूँ, ढूंढता रहता है, सर्च करता रहता है। तो जो भी हम ये सर्च करते हैं तो क्यों करते हैं? वी डू दिस सर्च ओनली टू इम्प्रूव अवर नॉलेज, जो हमें इन वन और द अदर फॉर्म किसी ना किसी अपने काम में हेल्प करती है। सो उसके लिए भी वी हैव टू स्पेंड मनी। ठीक है। तो ये सारे जहाँ आपने देखा सभी के साथ वी आर राइटिंग द वर्ड एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर का मतलब कि ये सारे पैसे खर्च करके जो हमें आगे बेनिफिट होता है वो मल्टीपल टाइम्स बेनिफिट होता है। तो दैट इज वाई वी स्पेंड मनी ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल दीज थिंग्स. So these are the various sources of human capital formation. Okay. So last minute is going on. Meeting may get over at any time. So today's homework is to read and learn all these sources. Tomorrow we will start the next topic, that is importance of human capital formation. Okay, ji? So with this we close this meeting. Thank you all for being here. और आज आपने ये सारा कुछ पढ़ लेना है. Fine. Sukhjit ma'am, now you can close the meeting, ma'am. It's going to be over now.